हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत, आई एम फ्रॉम सीएमसी वेबल। आज मेरे साथ है भाग्यश्री पाटिल, जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग लिया है और ट्रेनिंग के बाद इन्हें प्लेसमेंट्स मिली है। तो आज हम लोग उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जानेंगे कि नो जॉब से उनको अच्छा जॉब कैसे मिला, किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे गए, किस किस तरह के इंटरव्यू राउंड हुए। तो ये सब आज के इस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। कंग्रेचुलेशन भाग्यश्री फॉर योर प्लेसमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जब आपके पास जॉब नहीं था, आपने ट्रेनिंग लिया एंड देन आपको जॉब मिली? तो एक्सपीरियंस आप बताइए। Actual, I am Bhagyashree Patil. Okay, I have joined CNC Web World in 2021 in June. Okay, in last year. Okay, so I have talked with you. Yeah, I have searched on FB websites. So I have joined the demo lectures of Nilesh sir. Sorry, Nishan sir. Yes. So Java workshop I have attended. So that workshop is very fulfilled for me. So basic concept and all that things are very clear. Okay. So this is needed for a Java developer. So from zero to 100, uh, go how to go that. So that the way is best lectures of Nishan sirs. Okay. So after that, in 8 days, I have joined the training. Okay. So in 3 months, I have completed the Java trainings as a full stack developer. Okay. After that, I have started the job interviews. Okay. I am also working in a MKS other company, that is MKCM. Side by side, this training is done. Okay, completed. But in job interviews, they have faced all lots of issues. So how to tackle that? First interview is with TCS. So the TCS interview is not very difficult, but how can you tackle with all the questions? As per my opinion, that questions are very basics, but how to tackle all the questions, I have unknown about that. Okay. After that, second company is Cognizant. They have given the 9 lakh package, but also have not cleared the third technical round. Okay. Yes. After that, third company is Infosys. Infosys, all the 4 rounds are clear. 3 rounds are technical. First round is HR. Okay. All these 5 rounds are cleared. After documentation verification is also done. But in background verification, Infosys, there is very time consuming the time. Yes. ज़्यादा टाइम लग गया आपको? Yeah. So I am not interested on that Infosys. So I am goes to the Atos. So they have interview call in 3rd May in 2022. Okay. That Atos company has one shot interview. One shot interview is nothing but the first is your relevant experience and all that things are they ask. Okay. And after that they given the 2 technical rounds. First is coding and second is technical. Technical, that is a basic concept task cleared or not. So and 4th round is HR. That is called as one shot interview. Because of market is in boom, that's why they called it as a one shot interview. So yeah, so Atos is given to me 6 lakh package with 2.5 bonus, 2.5 lakhs of bonus. Or one thing is that in 10 June I have given a senior post promotion, a senior software engineer, as a senior software engineer, and they have promoted to also package with 2 lakhs, means actual package is 9.5 lakhs. Now, अभी आपका actual package 9.5 है at Atos, Yes. right? Yes. Okay. Within 1 month. They have income. Right.
या और आपको जो इंटरव्यू और ये प्रोसेस अभी के टाइम पे क्या लग रहा है कि आपको जॉब मिलना आसान है या डिफिकल्ट है? एक्चुअल जॉब मिलना आसान है, डिफिकल्ट तो नहीं है मेरे हिसाब से। हम्म, प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ही जरूरी है, 100% हम्म, मैं बोलूँ तो। और हम्म, प्रैक्टिकल चीजों में ज्यादा खेलना जरूरी है। प्रैक्टिकल ओके। नॉलेज, थियरी बेस्ड लेके कुछ फायदा नहीं। मीन्स जावा में सपोज बेसिक पॉइंट लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वॉइड मेन क्या है, ओके। हम्म, अभी है वॉइड मेन क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या है। सपोज मैं नॉन एक्सपीरियंस हूँ, मुझे कुछ मैंने इंटरव्यू का कुछ पता नहीं मुझे कैसे होते हैं एमएनसी में वगैरह, तो मैं हम्म, कैसे क्वेश्चन दूंगी? थेरोटिकल बेस, मीन्स बुक वाईज, हम्म, इन शॉर्ट मराठी में कहते उसको पुस्तकी किड्यासारखे आपण देऊ शकतो, ओके। हम्म, बट जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हा प्रैक्टिकली जैसे एक्सप्लेन करोगे, तो आपका आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन में आप इंस्पायर हो जाओगे, आप फर्स्ट ही क्वेश्चन में आप सिलेक्ट हो जाओगे। देर इज नो नीड कोई टू। कोई एक एग्जांपल ऐसा है कि ये क्वेश्चन पूछे गए तो इस तरीके से लोग प्रैक्टिकली आंसर कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड हो जाए कि ओके, कैसे करना है। ओके। अभी आप देखते हो कि वाइड मेन एक शॉर्ट है, वाइड और मेन दो ही शब्द है, ओके। हम्म, तो पूछते हो कि वाइड मेन में डिफरेंस क्या है, ओके। हम्म, वॉइड और मेन में डिफरेंस क्या है, तो प्रैक्टिकली कैसे बताना चाहिए? थेरी थेरोटिकली बता देते हैं वॉइड मीन्स नथिंग, मेन मीन्स फंक्शन, बट इट इज नॉट वैलिड आंसर एज पर माय ओपिनियन, ओके। हम्म, एंड इंटर ओपिनियन, हम्म, वाइड वाइड का पूरा मीनिंग पता होना चाहिए कि वाइड मैन क्यों लगता है, कौन से जेवीएम से उसका वर्जन कब से वो वाइड मैन फंक्शन कॉल होता है, स्टार्टिंग फंक्शन क्या होता है, प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, ओके। हम्म, जेवीएम कौन से मेथड को कॉल करता है, जेवीएम कॉल करने का जरूरत क्या है, ओके। रिटर्न टाइप वॉइड ही क्यों होना चाहिए, ओके। ऐसे तरीके से पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है उसको। मीन्स जेवीएम जब कॉल जब प्रोग्राम रन करते हो आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन मेथड कॉल होती है। मेन मेथड कॉल होती है मीन्स कौन कॉल करता है, तो जेवीएम कॉल करता है। जेवीएम इज नथिंग बट द जावा वर्चुअल मशीन, ओके। जेवीएम कॉल करने के बाद वो प्रोग्राम में लाइन बाय लाइन चेक करता है, मीन्स कंपाइलर, ओके, जावा कंपाइलर। दैट that are the questions answer is तो वैसे that way देना चाहिए। here. ओके। अभी आपने मोस्टली एमएनसी में ट्राई किया, टीसीएस हो, इन्फोसिस है, एटॉस है, ये Yes, सारे कंपनी ट्राई किया, तो आपको yes. क्या लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए? Actual, there is no need to how to give on the हर एक क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, ओके। हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत क्यों नहीं है? जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ना, वो आ रहा है तो यस बोलो, नहीं आ रहा है तो फ्रैंकली नो बोलो, सॉरी बोल दो, यस। और जो आ रहा है वो पूरा एक्सप्लेन करो, ये मेरे हिसाब से ये पूरा है। मतलब जस्ट उनको ये समझ में आ जाए कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको या तो डेप्थ में पता है या तो नहीं पता है, नहीं पता है, यस यस। तो उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या ट्रेनिंग देना है और क्या आपके पास नॉलेज है। यस यस। और सिंपल एक HTML CSS का क्वेश्चन लेते हैं कि HTML CSS जो दो फाइल है, ओके, उनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा पूछा गया था मुझे वो बता रही हूँ मैं। तो हम्म, HTML और CSS की लिंक कैसे होती है, इंटरनल होती है एक्सटर्नल होती है? ये ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बिकॉज HTML CSS कम्युनिकेशन इज फ्रॉम टू साइड्स, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, दोनों साइड से कर सकते हो। सो हाउ टू गिवन द आंसर, दैट इज डिपेंड्स। या ओके। या तो इंग्लिश आप मराठी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, एजुकेशन आपका क्या हुआ है? तो सर आई एम एक्चुअल फ्रॉम मराठी मीडियम। मराठी में थे, तो इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम हो रही थी कम्युनिकेशन के लिए? एक्चुअल इंग्लिश कम्युनिकेशन का ऐसा बोला जाता है सर कि क्लास लगाने बाद ही आपको इंग्लिश अच्छी आती है, ऐसा हर एक लोगों का कहना है कि क्लास लगाओ अपनी इंग्लिश अच्छी हो जाएंगी। लेकिन मैंने अभी तक एक भी क्लास नहीं लगाई है। आपने जो सेशंस लिए थे इंग्लिश के व्हाट्सएप ग्रुप पे जो कम्युनिकेशन का किया था, उस पे वो 1 by 1
कम्युनिकेशन हमारा किया था ना, उसमें ही हमारा इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया था। तो इंग्लिश हैकाथन जो हम लोग कर रहे थे वो बहुत अच्छा रहा, उससे इंग्लिश का बेनिफिशियल रहेगा। या और तो जितना खुद को मीन्स खुद जब आप बोलोगे खुद से कि हम्म, कैसे, हाउ टू गिवन द आंसर टू in front of person, so that the things is very important. ओके। तो अभी जैसे आपने यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग हुई, हम्म, और सीएनसी आपने जब जैसे आपने बताया कि निशांत सर का आपने क्लास किया तो उनको जावा का अच्छा लगा, तो उनकी ट्रेनिंग जावा का आपको इंटरव्यू में कितना हेल्प हुआ उनके yes. ट्रेनिंग से? इंटरव्यू में तो 90% हुआ है सर सक्सेस हमारा, क्योंकि ओके। निशांत सर का जो प्रैक्टिकल बेसिक पहला पार्ट 1 है, ओके, हम्म। उसमें से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी तो तक। कोर जावा ना? यस, कोर जावा सर। हम्म। यस, कोर जावा के ऊपर ही आपको कोडिंग भी पूछी जाती है। मीन्स फॉर एग्जांपल मुझे जो कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 प्रोग्राम लिखने को बोला गया था, एक हम्म। एरे पे था और एक कलेक्शन पे था। हम्म। सिंपल एरे डिक्लेयर करना था और लिस्ट डिस्प्ले करना था सिर्फ। और सेकंड जो क्वेश्चन था कलेक्शन पे, उसमें हैश मैप यूज करना था, उसमें से हम्म। सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू और वो पहचानना था, वो कोडिंग करना था। मीन्स कोडिंग मीन्स ऐसा कोडिंग राउंड है अपना, ऐसा घबरा मत जाना, क्योंकि कोडिंग मीन्स उनको 100% बराबर ही चाहिए ऐसा नहीं रहता है। आप हैश मैप कलेक्शन आपको पता है कि नहीं पता है, हैश मैप क्या है क्या नहीं, वो सिर्फ हम्म। चेक करते हैं। तो जैसे आप कह रहे हो कि कोर जावा जितना निशांत सर पढ़ाते हैं उतना इनफ है इंटरव्यू निकालने के लिए, क्या लगता है आपको? पार्डन सर। जो कोर जावा में जो कॉन्सेप्ट सर पढ़ाते हैं, तो हाँ, उतना इनफ है? मतलब उतना अगर स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ाई कर लिया तो जावा का कोर जावा क्वेश्चन आराम से कवर कर सकता है? यस सर, यस सर। 1 by 1 वीडियो निशांत सर के प्रैक्टिकली 1 by 1 प्रोग्राम भी किए, तभी भी हम्म। आप 90 to 95% आप पास हो जाओगे सर, टू हम्म। टेक्निकल राउंड्स में। ऐसे ये ना, मैंने आपसे क्वेश्चन क्यों बोला कि निशांत सर के जो कोर जावा के क्वेश्चन पढ़ने के लिए जितने भी स्टूडेंट जावा के प्लेस हुए हैं, हम्म, तो वो सारे लोगों का यही है कि जो निशांत सर का अगर आपने जावा पढ़ लिया है ऑनेस्टी के साथ सारे हम्म, चीजें, तो आपको 90% चांस है इंटरव्यू क्रैक होने के लिए। इसलिए मैंने आपसे चीजें रिपीट किया क्वेश्चन के लिए, यस ये भी यस। जावा के जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अच्छे से उनको ये समझ में आ जाए कि जो उनको उनके पास रिकॉर्डिंग्स है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो, अच्छे से पढ़ाई कर लो और प्रैक्टिस कर लो, तो आपके लिए जावा पे इंटरव्यू निकालना आसान हो जाएगा। यस, एक्चुअल आपको भी पता है सर, मैंने लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं किए थे ड्यू टू सम Right. ऑफिशियल प्रॉब्लम, बट मैंने जैसा टाइम मिला वैसे वैसे वो वीडियो कंप्लीट किए, रिकॉर्डेड वीडियो, जैसा एक्सेस मिला था वैसे। सो रिकॉर्डेड वीडियो में से भी आपको समझता है, ऐसे जरूरत नहीं कि लाइव वीडियो ही देखना चाहिए। ऐसे और लोगों आपको को ना डर रहता है मन में कि लाइव में हम पूछ सकते हैं, एक ये डर रहता है। लेकिन देखा जाए तो जो लाइव सेशन होते हैं उसी की तो रिकॉर्डिंग है। यस और यस। आपको जो डाउट है वो सर को मानने की बात में होगा तो वीकेंड को डाउट सॉल्व कर देते हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। बट एक डर खत्म हो जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एज पर मैं ये 2-3 बार मेरा ऐसा ही हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियो मैंने देखे, आपको भी पता है मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो मैंने निशांत सर को 2-3 बार व्हाट्सअप भी किया था कि मुझे ये टॉपिक पे प्रॉब्लम्स है, तो निशांत सर ने विद इन 5 to 10 मिनट्स में मुझे रिप्लाई दिए थे, और वॉइस हम्म। कॉल रिकॉर्ड करके उन्होंने वो सब कुछ बताया था मुझे। ओके। या तो आपको सीएनसी वेब वर्ल्ड से आपको कितना हेल्प मिला है अभी तक? सीएनसी वेब वर्ल्ड्स का हेल्प तो 90% मिला है, 90 to 95% सपोर्ट सिस्टम तो आपकी है। हम्म। यस। और मतलब जैसे मानो टेक्निकल ट्रेनिंग हो या कम्युनिकेशन के लिए हो, तो ये सब सारी चीजें में आपको कहीं पे कुछ इशू नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं सर, आप जब कॉल करें आप उठाते हो और हेल्प करते हो हमको। नहीं नहीं, फोन नहीं उठाते हैं तो कॉल बैक भी करते हैं। तो बहुत बहुत लोगों का ये रहता है कि नहीं, आप फोन नहीं उठाते हैं, लेकिन समटाइम कभी कभी अभी मालूम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ये फोन अगर आएगा तो मैं भी नहीं उठा पाऊंगा, राइट? यस तो यस। कॉल बैक करके फिर थोड़ा सा रहता है
हम लोगों का भी मेन वही होता है कि देखो कोई भी कोर्सेस हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्टार्ट किया, तो मेन मोटो ये नहीं था कि आप सर्टिफिकेट लेके जाओ। सर्टिफिकेट मिलेंगे आपको, हर जगह मिल जाएंगे सर्टिफिकेट। हम लोग भी ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है, हम लोग भी आपको सर्टिफिकेट देते हैं, उसका नहीं। लेकिन मेन मोटो क्या था कि लोग इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करता है, जॉब से ज्वाइन करता है, तो जॉब मिलनी चाहिए। Yes. और जो प्लेसमेंट रेशियो अगर आपने भी देखा होगा आपके बैच से देखे, तो मोस्टली 90% लोग प्लेस्ड होते हैं। Yes. 10% बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ना ही नहीं है, बस एडमिशन ले लिया है, तो फिर उनको कोई नहीं हेल्प कर सकता है। Well, रियलिटी सर, कल ही मैं मुंबई से जलगांव आई थी ट्रेन से। उसमें थोड़ा सा डिस्कशन, 2-3 ऑफिसर थे वहाँ पे सेल्स टैक्स के। उनका खुद का एक करियर डेवलपमेंट करके एक कोकन में एक खुद का आपके जैसा इंस्टीट्यूट है, CNC वेब वर्ल्ड जैसा। उनको सॉफ्टवेयर में इंडस्ट्री में जॉब कैसा मिलना चाहिए, तो उनका मैं बात सुन रही थी। तो सुनते सुनते ऐसे ही फ्रेंड्स हो गए हम। तो वो बोल रही थी कि उनका भी कहना यही था कि ग्राउंड लेवल पे आप जब तक रूरल एरिया से आप जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। ये मेन मोटो था सर उनका। मीन्स इंग्लिश कम्युनिकेशन बोलते ही 90% लोग बाहर पड़ जाते हैं। ऐसे देखो उसका भी तरीका है कि हम अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग एफर्ट नहीं देना चाहते। यस हम इंग्लिश हैकाथन में अभी आपको पता है, आप लोग कितने स्टूडेंट थे, बट 50% स्टूडेंट रेगुलरली आते थे और करते थे, रिवीनिंग नहीं करते थे। तो अगर वो लोग कहते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिलेगा, तो मैं कहूँगा कि तुम क्यों नहीं अटेंड करते थे। यस। जो लोग मॉक इंटरव्यू होते हैं, नहीं आते हैं, प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली है कि जॉब नहीं मिलेगा। बट जो लोग डेडिकेशन के साथ करते हैं तो 100% जॉब मिल जाती है। आपका लास्ट स्टेटमेंट था कि आप हो ही जाओगे आप, तो सेकेंड डे इंटरव्यू था तो हो गया सर। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक टाइम आता है। अब मैं भी कितना 10-12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो अब एक चीज रियलाइज करना हो कि जब आप लोग एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करते हो, वो कॉन्फिडेंस जब जॉब मिल जाता है तो कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क होता है। और ये फर्क मैं देखता हूँ थ्रू द कम्युनिकेशन के सेशंस में, मॉक इंटरव्यू के सेशंस में। मैं बताता हूँ, कल की इंटरव्यू इसका था स्वाति गंधाले का, फ्रंट एंड में उसको जॉब मिली। जब मैंने फर्स्ट टाइम जब उससे मॉक इंटरव्यू में हम लोग मिले थे, मैं देखा था तो फंबल कर रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उससे बात करके कि वो आंसर कॉन्फिडेंटली दे रही है। मैंने उसको आप यूट्यूब पे देखना, मैंने पूछा भी उससे कि ये जो आपका कॉन्फिडेंस देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जब कोर्स ज्वाइन की थी कितनी फंबल कर रही थी और आज कितने कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हो। सेम एक और लड़की थी सोनल पाटिल करके, वो फ्रंट एंड की थी, स्वाति पाटिल थी वो। तो अभी उसका भी मैंने देखा था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे में मुझे खुशी मिलती है कि चलो हमने कुछ तो किया है कि एक उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जैसे आपने बोला कि ठीक है, जब ग्राउंड लेवल पे नहीं होता है तो ज्वाइन करने के बाद वो एक अच्छे से तो स्ट्रांग हो गई है ना। ये आपका चेंज है, जॉब तो आउटपुट है, तो जॉब तो है, चलो पैसे मिलेंगे, बट आप भी सीखे हो ना, आप कॉन्फिडेंट हो, आप कुछ बोल सकते हो, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो, तो उससे आपका करियर और लाइफ में भी चेंजेस होते हैं ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यस वही सर, कि आपको प्रॉपर गाइडेंस होना और उतना प्रैक्टिकल और एफर्ट्स आपके होने चाहिए, ये मेन बात है सर। जब तक आप एफर्ट्स नहीं लोगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा, ये तो मेरा मानना है। और गाइडेंस के लिए आपने CNC की ज्वाइन जो किया था, तो यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस आपको मिली थी या कैसा रहा? रियल बात बताऊँ तो I have placed in MKCL, first company that is MKCL, that work as a software trainer, okay, Java software trainer. But that job is not satisfied for me because I am not interested in that field. Okay, so my dream is selection in MNC company. Okay, that's the main dream of me. So after that, in lockdown, I have just searched on FB, that is CNC Web World. So I have searched the review also, okay, and also joined the Nishan sir workshop. After that, I have 100% confidence of that कि Java
में अपने को जॉब मिले ही जाएंगी इन 3 मंथ्स, बट इधर उधर हो सकते हैं, 3 मंथ्स इधर उधर होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये कोर्स तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप रियलिटी बताती हूँ सर, जब तक आप लोकल लैंग्वेज में कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हो तब तक आप सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ये मेन बात है। ओके, सो निशान सर की टेक्निक जो है बोलने की, समझाने की, वो प्रैक्टिकल तरीके की करने की, वो सब कुछ मुझे बहुत फुलफिल लगा, इसलिए मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया था। और गाइडेंस बोला तो मैंने पहले ही बोला कि जब चाहिए तब गाइडेंस मिलता था आपसे और निशान सर से, दोनों तरफ से, और एज वेल एज मैंने शिल्पा मैम का भी अटेंड किया था, फ्रंट एंड का। ओके, तो शिल्पा मैम से भी बहुत अच्छे रिव्यू आ रहे थे मेरे। यस, गाइडेंस तीनों की तरफ से मुझे अच्छा ही मिला सर। तब तक मुझे एमएनसी क्या रहती क्या नहीं रहती मुझे कुछ पता नहीं था सर। मैं एमएनसी बोलते ही मुझे ऐसा लग रहा था हम तो रूरल एरिया से। ओके, एक रहता है ना सर कि इतना बोलते आएगा कि ये नहीं आएगा, बट अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा देर हो गया है सिलेक्शन होने का। कोई बात नहीं, जो जैसे आपने बोला कि एमएनसी के लिए मैंने सीएनसी ज्वाइन किया था, अभी एमएनसी में आप पहुंच गए हो, तो वो डिस्टेंस दूर है, तो थोड़ी सी देर हुई, टाइम लगा, बट सेटिस्फाइड है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो सेटिस्फेक्शन, आपका मेहनत है, तो आपने अच्छे से टाइम दिया, एफर्ट दिया, जॉब करते हुए आपने टाइम दिया, टाइम नहीं मिला लाइव क्लास का तो आपने वीडियो से देखा, फिर अपने सर से पूछा, सर सॉल्व किए, ये कम्प्लीटली आपका एफर्ट है। यस यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि अभी जो स्टूडेंट हमारे जो है क्लास कर रहे हैं, तो उनको अगर आपको गाइड करना हो कि क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे प्लेसमेंट हो, ओपनिंग कैसे फाइंड होनी चाहिए, कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, ब्रीफ में एक बता दो ताकि एटलीस्ट उनको एक आइडिया मिल जाए कि हमें कैसे एमएनसी कंपनी में जॉब मिल सकती है। सही सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कोर जावा के जितने ही सपोज जावा का आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो उतने जितने वीडियोस है कोर जावा के उतने पूरा करना चाहिए। ओके, पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं हुआ तो भी चलेगा। ओके, पार्ट 1 यस यस, पार्ट 1 पूरा करना चाहिए, कलेक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह। ओके, बेसिक से करना चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंट हो आप, ओके, तो एक बार आप खुद की इंटरव्यू खुद लेना। ओके, एक मैं बता रही हूँ, मैंने जैसा किया था, खुद को ही क्वेश्चन पूछने, व्हाट इज वाइडमैन एंड व्हाट, प्रैक्टिकली सब कुछ रखना। ओके, एंड आफ्टर दैट नौकरी प्रोफाइल पे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। ओके, इंडीड भी है लेकिन ज्यादातर गारंटेड naukri.com ही। ओके, वहां से आपको कॉल आ सकते हैं। ओके, अभी वहाँ पे naukri.com पे प्रोफाइल 100% कंप्लीट करना, तभी भी आपको कॉल आते हैं। आपको टैगलाइन का क्या रखना, क्या नहीं रखना, टैगलाइन अच्छी होंगी तभी आपको कॉल आएंगे विद इन 1 to 2 days, नहीं तो आपकी टैगलाइन पूरी अच्छी नहीं होंगी तो आपको कॉल नहीं आएंगे। ये भी बता देती हूँ मैं, टैगलाइन जितनी स्ट्रांग होंगी अपनी उतना आपको बेनिफिट होगा। ओके, टैगलाइन के बाद एक्सपीरियंस आप एक्चुअल कितना बताने वाले हैं। ओके, बट उसके बाद वो एक्सपीरियंस पूरा आपने को, वो सपोज 2 years का एक्सपीरियंस दिखाया आपने, रिलेवेंट है 3 years का, और आपका जावा में है 2 years का। ओके, अभी वो 2 years में आपने कितने प्रोजेक्ट किए, इन 2 years विद इन एक्चुअल 2 to 3 प्रोजेक्ट्स इज कम्प्लीटेड, इट्स मैग्नेटरी। ओके, आप सिर्फ 2 years में एक ही प्रोजेक्ट बताओगे तो दैट इज नॉट फुलफिल फॉर यू। ओके, 2 to 3 प्रोजेक्ट्स आपको बताने चाहिए। एक्चुअल आपका 2 years का एक्सपीरियंस होगा तो उसके बाद वो जो प्रोजेक्ट लिया हुआ है आपने 1 or 2, उसमें से एक प्रोजेक्ट तभी पूरा एक्सप्लेन करते आना चाहिए आपको। ओके, मतलब लाइन बाय लाइन प्रोग्राम समझ में आना चाहिए। आपने फ्रंट एंड में क्या किया है, बैक एंड में क्या किया है, कौन सा डेटाबेस यूज किया है, क्या किया है। ओके, सिंपल क्वेश्चन जो है आपने खुद आप पढ़ने चाहिए, पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते आना चाहिए, फ्रंट एंड जीआई कैसा रहेगा उनको बताते आना चाहिए, ड्रॉ करके कि कैसे क्या होना चाहिए। ओके, उसके बाद
अभी सबसे लास्ट है सर, अभी जो मार्केट में चल रहा है वो है स्प्रिंग MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओनली स्प्रिंग का बेसिक भी पता होगा ना, तभी भी आपको बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी जो है वो कंपनी के प्रोजेक्ट पे डिपेंड रहता है। ओके, उसके बाद API टेस्टिंग का थोड़ा बार पढ़ लेना, REST API क्या रहती है, ओके, पोस्ट गेट क्या काम करते हैं, ये इतना भी किया। कोर जावा प्लस API टेस्टिंग के 1-2 क्वेश्चंस, API टेस्टिंग रहती है क्या, ओके, एंड प्रोजेक्ट, ये 3 चीज़ों की है तो आपको 100% जॉब मिलेगी सर। ये 3 चीज़ों आप naukri.com पे 100% स्ट्रांग रखो। प्रोजेक्ट भी मेंशन करो, प्रोजेक्ट अच्छे से मेंशन करना, और आपकी नोटिस पीरियड क्या रखने वाले हो, क्या नहीं रखने वाले हो, वो मैच होना चाहिए आपके डेट से। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको naukri.com पे प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद 1-2 दिन में ही आपको कॉल आ जाएंगे, नहीं तो 8 दिन के बाद भी कॉल आएंगे। ये पूरा एक्सपीरियंस मेरा है सर, ये आपको बताना है। थैंक यू सो मच भाग्य जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि जो आप जैसे आपने प्रोजेक्ट हो, एक्सपीरियंस हो, और यहाँ Yes, तक कि नोटिस पीरियड जो भी बताया, नॉर्मली देखा जाए तो ये सारी चीजें हम लोग कवर भी करते हैं, बट स्टूडेंट सीरियसली इसको सुने करे तो डेफिनेटली हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं है। yes, और जो भी आपने शेयर किया ये एक्सपीरियंस डेफिनेटली CNC के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, और वो भी जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग लेके प्लेस हो जाएंगे। yes, yes, सर, ओके, थैंक 100%। यू। यस, थैंक यू सो मच भाग्यश्री, टाइम देने के लिए और अपना एक्सपीरियंस CNC के साथ शेयर करने के लिए। Yes, sir.